Hello everyone, this is Falak Nazir, your business studies educator. Let us make business studies easy with Easy Hai Online. Hello students, welcome to the class of accountancy. Hello everyone, I'm your physics teachers and online mentors. Hello everyone, I'm your host and host, your biology teacher and online mentor. Hello students, my name is Dheeraj, I'm your physics educator. Hello student, this is Sujata, your law faculty. I'm here with Easy Hai Online to make learning easy. Good morning students, this is your bioeducator, Dr. Sunita Chaudhary. Hello students, I am an assistant faculty. Friends, I am your economics teacher. So you also do planning, na? In the same way, in organizations also planning is so important. So it is very interesting and let's understand this planning, everything about planning. In this chapter, I'll be teaching you the concept of planning. What are the different concepts and the definition of planning. Then I'll describe you the importance of planning, students. Yes, planning is very important. As I have explained you, it is important in every organization. It is important everywhere, student. Then we will understand the limitations of planning. As you know that nothing is free from limitations. Hence, planning also has some limitations. But it is very important for every manager to eliminate those limitations. Then we will understand the steps of planning. Planning have a process and it has different steps. We will understand about that. So, pull up your socks. Let's understand everything in detail. Let's get starting, student. See, the Institute of Company Secretaries of India. Before starting the chapter, you must know about the ICSI. So let's see. The Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, is the only recognized professional body in India just to develop and regulate the profession of company secretaries in India. It means कि ICSI को एक recognized professional body माना गया है जिसके through हम क्या deliver कर रहे हैं, company secretary deliver कर रहे हैं. We are basically providing the profession of company secretaries in India. Now, if I say it is a premier national professional body that is set up under an act of parliament. अब ये जो ICSI को जो setup किया गया है, ये कैसे setup किया गया है? तो under the act of parliament, the Company Secretaries Act 1980. और क्या नाम है उस एक्ट का? The Company Secretaries Act 1980. So, अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली CS कौन होते हैं, CS बनने के लिए क्या करना पड़ता है, CS इन जॉब में जा सकते हैं, CS प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं. एंड एज यू नो दैट कि जो कंपनी सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन है वो बहुत बड़ा प्रोफेशन है. तो इसलिए कंपनी सेक्रेटरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है दैट इज बेसिकली गिवन अंडर द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाई गई हैं जिसके थ्रू हम एक कंपनी सेक्रेटरी को रेगुलेट करेंगे, उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, Let us draw the format. Our format of journal only will be drawn as we did in the previous session, because we are doing the rectifying journal entry. So our format is ready. And what are the columns here, children? On the top of the statement, we will write rectifying journal entries, then date, particular, ledger folio, debit amount, credit amount. So this is our format where we will write the main entries, then we will draw the working note part. So in working note, we will have two segments. First will be wrong entry and the second one will be right entry.
So for each rectifying entry, first of all we need to write the wrong entry, then right entry, then we will make the rectifying entry on the basis of the two. Okay, so now let us read the question and then we will proceed with the execution part of it. So our question is, pass necessary journal entries to rectify the following errors. First one is a credit sale of old machinery to Sohan for rupees 1700 was entered in the sales book for rupees 7100. So there are two mistakes. The amount is wrong and at the same time the wrong account has been used for recording. Okay, so the machinery was sold but by mistake it has been entered in the sales book. That means it has been considered as the sale of goods. So we have to do the correction in the account as well as in the name of the account as well as in the amount also, because actual sale was 1700 but it has been recorded as actual sale was 1700 and it was recorded as 7100. So that needs to be corrected. Let's read the next one. Cash sale of rupees 1700 to Gaurav was recorded as rupees 7100. So cash sale was the thing that we are supposed to record as 1700, which has been recorded as 7100. Only the amount is wrong. And which kind of wrong it is? Is it overcast or undercast? It is overcast. Excess has been recorded, so we need to reverse both the accounts which are involved here. So particular part is same, the entry is same, but we have to because of the extra amount that has been debited and credited both the parts, we have to reverse that, okay, to bring the nullifying effect or rectifying effect. So next one, let us read. Next one is bills receivable of rupees 8100 received from Ravinder was recorded in bills payable book. Again, the recording has been done in the opposite book, in the other book which is just opposite to the required one. So it is actually bills receivable but has been recorded in bills payable. So we have to reverse the bills payable part and we have to bring the effect of bills receivable recording. Okay. So let's introduce the term algebra and then we will come to the topic polynomial. Okay class? So the numbers. We all know about the basic numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. There are numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. And as well as there are some alphabetical letters like A, B, C, etc. up to Z. When there is a combination of these numbers and these variables, in maths, generally the numbers, or we can say in algebra, the numbers we use, we called them as constant. What we call them? Constant. And in algebra, these alphabetical letters are known as variables. Variables. Do you know why we call them constant and why we call them as variables? Constant are those which have a fixed value. Whatever is the phase, the value of these numbers will never change. 4 will remain always 4. As well as the other numbers will remain, the value of these numbers will never change. That's why we call them constant, which will never change. And the next term is variable. Variable, its name indicates something that is able to vary, means variable. Vary means to change. These values can be changed. In some place of A, the value of A may be 2, but in another condition, the value of A may be -2. So, the conditions are not equal every time. That is why we call it variable. I hope you understand the constant and variable.
Now we understand the combination of these numbers and these variable. Now I will give you an example like 2x. Okay. Now an operation is derived among these two things, that is 2 as a constant and x as a variable, and the operation is multiplication. When we multiply 2 with x, it known as an algebraic expression. It is an algebraic expression. And there are various things to learn about this only. There are number of things we will learn about it. Number one thing, this is a variable, as we already know. Okay, this is a constant. This is a constant. I think there is no doubt. Now, another thing we learn about. Whenever a constant is multiplied to a variable, it known as a coefficient of this variable. It is known as the coefficient of this variable. Means 2 is the coefficient of x. Okay. Now what we have learned? The three terminologies. Number 1, variable. What are variables? Number 2, constant. What are constants? And the number 3, what are coefficient? Coefficient is what? What is it is the number, it is the constant value which is multiplied to a variable. Okay. Okay. Now moving ahead. A new concept arrived among us, which is a exponent. I hope you all have learned about the power of any number or power of any variable. Like if I say that there is a 2 square, so it will always remain 2 square means 2 into 2 means 4, right? But in a case when this power is accorded with the x, means it is a power of a variable, right? So in maths or in algebra we call it exponent. What we call it? Exponent. Okay. I think there is no doubt among constant, variable, coefficient and exponent. Okay. When there is a term having all these things, it is known as a term. It is known as a term. Okay. And when there are 3 or more terms in an equation, in an algebraic equation, it is known as a polynomial. Okay, so here it is the introduction of the chapter, that what are basically polynomials and what are the basic terminologies we are using to explain polynomial. Okay, so now I'm again taking an example, an algebraic equation, and in this equation we will again explain once again the what are variables, constants, coefficients and exponents. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस पिक्चर के बारे में जो हमारी एनसीईआरटी बुक में सबसे फर्स्ट में दी गई है. ठीक है, ये पिक्चर इन 1798 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी. अब ये पिक्चर का मीन्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि ये जो मैं स्टैचू दिख रहा है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. उसके एक हाथ में है टॉर्च, ठीक है, सेकंड हाथ में है मैन राइट्स चार्ट. मीन्स कि जो इस चार्ट में सारे इंसानों के लिए, सारे व्यक्ति के लिए एक राइट्स लिखे गए हैं, वो सारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने पकड़ रखा है. ठीक है, अब ये जो भीड़ जा रही है ये तुम्हें दिख रही है. ठीक है, ये भीड़ जो है वो हमारी मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए, ये मोनार्की का चीज है, जैसे कि मतलब कि राजा महाराजों के ताज, उनकी शासन, उनके कपड़े, ये सब चीजें हैं ये जो इन्हें पटकती जा रही है. From this chapter, I am going to discuss the blood and its components. So students, as you all know that the body
of the multicellular organisms is made up of cells. And these cells, they need nutrients and oxygen for the continuous supply of energy. Cells also contain the waste products like your urea, uric acid and carbon dioxide. So they need to be removed from the body. So for removal and for the supply of nutrients and even for the transport of your hormones, because hormones are synthesized by the endocrine glands and their site of action is somewhere else. So the transport of all these nutrients and your waste products and your hormones, they need a transport system. So in the complex organisms like human beings, the body fluids, they play a crucial role. And in human, there are two body fluids. One is blood, another is plasma. This blood, it has got 55% plasma part and 45% formed elements. This plasma, it constitutes 90 to 92% water, 6 to 8% proteins. Proteins means your albumins, your globulin and your fibrinogens. Whereas the formed elements, they are composed of the cells, your RBC known as erythrocytes, WBC, leukocytes and the blood platelets which are known as thrombocytes. RBC help in transport of gases, leukocytes provide the immunity and they are of again 5 types. Whereas your thrombocytes or the blood platelets, they help in clotting. So students, in this chapter, beside this topic, you are going to learn about the heart, its structure, the types of circulation and also the heartbeat from where it originates and the heart sounds. You will also learn the ECG and the blood groups, a very interesting topic, RH factor and also why there is a need for blood test whenever you go for your blood transfusion. So students, keep learning. तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, तो आपको पता है कि लार्जर बनेगा, वर्चुअल बनेगा कॉनकेव मिरर के अंदर, तो V की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। V क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। तो V को पॉजिटिव होने के लिए हमें पता है कि U की वैल्यू क्या होना पड़ेगा? V -3 होना पड़ेगा, -3 मैग्नीफिकेशन नेगेटिव एंड U ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। तो जरा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होना चाहिए। तो सीधा 1/V की वैल्यू 3U अपॉन -U इक्वल टू 1 अपॉन -24, ठीक है। एलसीएम हमने 3U लिया तो सीधा 1 माइनस, ओ नो, क्योंकि बच्चों V की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो मैग्नीफिकेशन ऑलरेडी नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू भी आपको क्या रखना पड़ेगा? U नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो सीधा -3U, तो सीधा -+U इक्वल टू 1 अपॉन -24 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से अगर हम लोग निकाले कितना आना चाहिए? 3U एंड U -3, सॉरी 3U -1 + 3 इक्वल टू -1 अपॉन 24। तो 2 बाई कितना आ गया? 3U इक्वल टू -1 अपॉन 24। तो यहाँ से बच्चों जो मिलेगा 38, ठीक है ना। U/2 की वैल्यू हो गया -8, U की वैल्यू कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर पे, कितना? माइनस। तो V की वैल्यू है बच्चों 3 इंटू ऑफ माइनस कितना हो गया? +24, सॉरी 16, यानी 48 सेंटीमीटर पे जाके इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ओके, यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारा U कितना आया है माइनस, तो V कितना है? -3 इंटू U की वैल्यू बच्चों क्या है? V इंटू -16, तो V इक्वल टू +48 सेंटीमीटर पे जाके बनेगा। तो अगर आपकी V 48 आ गया तो U कितना आना चाहिए बच्चों? U आपको U तो फाइंड आउट, U तो मिल ही गया ना यहाँ पे। हमने सबसे पहले U तो निकाला है, यानी कि मीटर से हमारी जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो 60 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। क्लियर है? ओके। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है रियल बने 3 टाइम्स बने, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रियल बने, मैग्नीफिकेशन सेम है, लेकिन इस बार रियल का मतलब है कि इमेज डिस्टेंस भी किस में आना चाहिए बच्चों? नेगेटिव में आना चाहिए। चलिए, तो अब हमें पता है कि इमेज V की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है वो, एंड मैग्नीफिकेशन दिस इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। एंड V/U इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 3
तो v इक्वल टू कितना हो गया 3u। चलिए 3u 1/v प्लस 1/u की वैल्यू क्या होता है 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ कॉमन होगा, कर्वेचर 24 है तो -12 पे होंगे, 24 सेंटीमीटर है रेडियस, देन f 1/v दिस इज द 3u माइनस 1/u फोकल ये सॉरी प्लस 1/u ही रखो, देन इक्वल टू 1/-12, देन एलसीएम बच्चों क्या होगा 3u 1 + 3 इक्वल टू 1/-12, 4/3u इक्वल टू -1/12, 3u/4 इक्वल टू -12, 4, तो u की वैल्यू बच्चों यहाँ पे भी कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर है वर्चुअल 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रियल है, तो v की वैल्यू हमारा होना चाहिए v इक्वल टू होगा 3 × u, तो -48 सेंटीमीटर पे जाएगा। ठीक है, यानी कि जो v की वैल्यू हमारा होगा वो 3u था, तो u आपने निकाल लिया कितना 3 × -16, देन v इक्वल टू -48 सेंटीमीटर पे। पहला केसेस में पोल से मिरर से राइट साइड बन रहे थे 48 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव वैल्यू आया था। इस केसेस में क्या है, मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में 48 सेंटीमीटर बन रहा है, तभी हमारा मैग्नीफिकेशन कितना होगा बच्चों 3 टाइम्स। अब कहता है रियल भी बन रहा है बट मैग्नीफिकेशन ले के जैसे, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन ले से बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन 1/3 है, दिस इज द v/u 1/3, तो v बराबर कितना हो गया u/3। सब कुछ वही है बच्चों, 1/v प्लस 1/u 1/f, 1/v दिस इज द u/3 प्लस 1/u इक्वल टू 1/-12, 3/u प्लस 1/u इक्वल टू -1/12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, u4 इक्वल टू -1/12, u/4 इक्वल टू -12, -12 इंटू क्या बच्चों 4, -48 सेंटीमीटर। इस बार ऑब्जेक्ट -48 पे है, तो इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, इमेज तो छोटा हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स है, तो v बराबर क्या है बच्चों -u/3, तो v इक्वल टू -48/3 16, तो v भी -16 सेंटीमीटर पे बन रही है, उल्टा हो गया। अगर इमेज 48 सेंटीमीटर पे है बच्चों, तो v की वैल्यू कितना आना चाहिए -16 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का 3 पार्ट थे, क्लियर है? ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ए गन ऑफ मास m1 फायर अ बुलेट ऑफ मास m2। अच्छा, एक गन है जिसका मास m1 है, तो गन यहाँ पे कह रहा है कि सामने एक मिरर है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे पोल है, ठीक है, यानी मिरर को ही गन मान लिया है, ठीक है ना, मिरर के अंदर गन सेट है, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे इस गन को फायर कर रहा है तो यहाँ से बुलेट बाहर निकलती है, तो जब बुलेट बाहर होगा तो मिरर भी बाहर जाएगा, ये बात तो पक्का है। तो मान लेते हैं मिरर की वेलोसिटी, अगर मिरर की मास हमारा m1 है, बुलेट की मास m2 है, यहाँ से बुलेट जा रही है बच्चों, इसकी वेलोसिटी आपने v0 ले लिया, एंड मिरर की वेलोसिटी जैसे हम लोग गन को फायर करते हैं, तो अगर बुलेट निकलती है रफ्तार से तो गन भी पीछे की ओर आती है, तो मिरर भी पीछे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो मिरर की वेलोसिटी हमने क्या मान लिया v1 पहला। लगाइए, तो कह रहा है कि अगर ठीक है, अगर बुलेट की वेलोसिटी v0 से जा रहा है तो मिरर किस वेलोसिटी से पीछे जाएंगे, तो आप लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाएंगे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल हमारा पास 0 था, फाइनल मोमेंटम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मारेंगे तो दूसरा नेगेटिव में जाएगा। दिस इज द m2 v0 माइनस ऑफ m1 v1 इक्वल टू 0, एंड m1 v1 की जो वैल्यू निकल के आ गया
m2 v0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। v0 दिया हुआ है कि जिस वेलोसिटी से बुलेट बाहर निकलेंगे वो वेलोसिटी v0 की वैल्यू दिया है बच्चों v0। ओके, तो यहाँ से हमने v1 निकाला कि जो मिरर की वेलोसिटी है m2 बाई m1 इंटू क्या होगा v0, यानी m2 बाई m1 क्या होगा बच्चों v0। इसको साइड में रख लीजिए, इसकी ज़रूरत है, यानी मिरर किस वेलोसिटी से आएंगे वो तो ठीक है। अब आगे कहता है कि जब गन इज फिटेड विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, जब मिरर की फोकल लेंथ दे दिया है फेसिंग टुवर्ड्स द डिसेंडिंग बुलेट, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड द इमेज जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर्ड। समझना ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट की सेपरेशंस एंड इमेज, सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड द इमेज जस्ट आफ्टर द गन वाज फायर। तो कहता है कि आप मुझे बताइए कि जब मिरर एक साथ लेफ्ट में जा रही है, ठीक, और ये बुलेट इस साइड जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के हिसाब से क्या होना चाहिए? वेलोसिटी सेपरेशन ऑफ, यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जिसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों बोलते हैं वीआर, ठीक है। वीआर की जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज द v0 माइनस क्या होना चाहिए ऑफ माइनस v1। तो वीआर की वैल्यू यहां से निकल के आ गया v0 प्लस v1, ठीक। v1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, v1 की वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं। तो मिरर के रेस्पेक्ट में दिस इज द v0 प्लस m2 बाई m1 मास, दिस इज द v0। तो यहाँ से सेपरेशन ऑफ मिरर के हिसाब से अगर निकलेगा बच्चों तो 1 प्लस m2 बाई m1 इंटू v0। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है बच्चों कि एक चीज़ बता दो मुझे आप कि अगर बुलेट हमारा इस साइड आ रही है, ठीक, तो मिरर में जो बुलेट का इमेज दिखेगा उस साइड जाता हुआ दिखेगा और साथ साथ मिरर भी इस साइड में जाते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें बात किया गया है कि separations, find the separation of the bullet and image just after the gun was fired। तो अब हमें बात करना होगा कि इमेज की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होना चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होना चाहिए बच्चों, उसको हमने v2 मान लिया, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी एज कंपेयर टू मिरर के हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी एज कंपेयर टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बच्चों होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ v1, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, या वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, दिस इज द v1। एंड इमेज की वेलोसिटी हमने क्या माना है v2, एंड v1 की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं बच्चों, v1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ देखो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के हिसाब से दिस इज द v2 माइनस v1 की जो वैल्यू है इसको रहने दो यहीं पे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशंस ऑफ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट, बुलेट के हिसाब से सेपरेशन क्या होना चाहिए ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। So hi friends, till now what we have learned metals, non-metals, metal and non-metal properties we saw. We also saw the chemical properties of metals. We saw the reactivity series, how the reactivity series depends and how the reactivity series reacts, higher reactive, how it removes the lower reactive, and lower reactive is not capable of removing higher reactive. We understood till now that much. Now let us understand how this metal is obtained. Okay, these metals are obtained. We are getting some metals like iron, I told you, steel, whatsoever metal we are getting, like mercury, I told you, is a liquid metal, one of the characteristic. So these are some metals is obtained by us. How that metal we get?
Do we get in the plant? It is there. We are going and plucking it, and we are getting that. No, it's not that way, right? So how this metal is obtained, we have to understand that. So now let us see obtaining of metal. How it is obtained. So metal can be obtained in three ways. So when I showed you the reactivity series, I showed you that a reactive series was there like that. One arrow was there. Lower reactive and higher reactive was there. Okay. So there are three types: the metal of lower reactive, metal of middle, and high. So metal, how will you obtain? One low reactive metal. Metals obtained from low reactivity. And how, like copper and all, how it is obtained. And metal in the middle. And metal of high reactive. High. So now let us learn this low reactive metal. Okay. How low reactive metals are obtained. So low reactive metals, I told you, metal having a character where it loses electron. So if person is a low reactive, now three types of persons are there. One is very high interactive. He reacts whenever you say hi, he will respond hello. And suppose another guy is middle reactive. You say hi, somehow he will say after a pause of a second, hello he will say. Okay, done. And one is a low reactive person. He doesn't say. You say hi. After 3-4 days, 5 days, he will say hello, one message will come. Okay, hello. So there are three types of person also in human nature you can see. They are not interactive, some people. Some will tell extrovert, who will be extrovertly, will be mixing with people. If you say something, even if you don't talk, you are standing there, he will come and say, hi, how are you? He will talk with you. So they are highly interactive people. And some other middle, if you interact with them, they are going to interact. And some people are there, if you are going to talk also with them, hi, hello, there is no reaction with them also. So there are three types of people. So in metal reactivity also, three types it is obtained. That is low reactive metal, high reactive, and middle reactive and high reactive. In this series, three portions we can divide like that. So the lower side, middle side and higher side. That is the basic thing we understood. Now, how we will obtain this low reactive metal? First, let us understand that. So low reactive metal, as I told you, response is very less. They are not going to respond. So this can be obtained in case of metal. It can be obtained through certain process. So before discussing this process, let me tell you how these metals are exactly existing. Now some metals say it is staying in free in nature. Free in nature means it is obtained from the nature itself. Like you say gold. Gold, how it is obtained? It is underneath the earth. You will see gold mining. If you had seen the Discovery Channel, there will be certain channels will be there will be gold mining, how they make profit. Interesting the story they will see you. You can see there. So gold mining is a process, that means it is found under the earth crust. Similarly, silver also we are finding like that only. But certain compounds are there where we cannot found in nature directly. Nature, it is not found in nature directly. Next system that we'll be learning about is the excretory system, right? Excretory system. So following the same model that we've understood so far, each of these phyla have different ways of excreting, but the phyla that are more simple have more simpler ways of excretion. Okay, they do not have an entire excretory system. But as we grow more and more complex, like for example, a human, we have a really complex mechanism. Okay, we have a really complex mechanism of excretion. All right, you have your kidneys and all the accessory ducts and all the different ways of excretion. All right, now here also you need to understand two different types of classification. One is based on the kind of nitrogenous waste that we give out. Okay, based on the nitrogenous waste, there is one sort of classification, and the second is based on the excretory system itself. All right, so first let's try and understand the classification that is based on the nitrogenous waste that is given out. All right, so based on nitrogenous waste, you have three types. First is your amonotelic. Then you have ureotelic. Okay. Finally, you have uricotelic. Here there is one thing that you have to understand. As we go from amonotelic to uricotelic, the amount of water availability or the amount of water that you need in order to excrete in each of these forms decreases. All right, I'll explain how it is. Amonotelic means such organisms where the waste, okay, where the waste is excreted out as ammonia.
directly. Ammonia itself is excreted out. Next, here in ureotelic, the waste is excreted out as urea. All right. And before ending this session of the trigonometric ratios of compound angles, I want to discuss two more sum where you have to observe the pattern of the sequence. And this concept is to be the universal concept in the mathematics section where you have to apply in the different context. अब अगर आप मान लो कि जरूरी नहीं है कि अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक करें तो यही लगेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी लग सकता है, बाइनोमियल्स के अंदर भी लग सकता है. ये पैटर्न ऑब्जर्व करना और उसको पिक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द मैथ्स जेई कैरिकुलम. ये क्वेश्चन आपको इसी बात को इलिस्ट्रेट करता है. ये इसी पैटर्न को समझने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है. सो लेट्स दिस क्वेश्चन हियर a is equal to pi by 4 and to find the values of 10RA and 10R plus A. Most of the students thought कि सर A by 5 means what? A by 10, pi by 10 which gives a value of sine 18 degree and A by 5 which gives a value of 36 degree. तो अधिकतर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अरे हमें इसका क्या करना है? What's the utility of this? ये A is equal to pi by 5 का क्या करें? यस हम इसको यूज करेंगे लेकिन इसके एंगल के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थॉट कि ठीक है अरे यार ये पाई बाई 10 अगर आपका 18 डिग्री है सो पाई बाई 5 आपका 36 डिग्री होगा. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थॉट कि अरे ये 36 डिग्री की वैल्यू हमको मिल जाए. नो वी डोंट गो इन दिस वे. अगर आप इस तरीके से गए तो क्वेश्चंस को आप रॉन्ग कर बैठेंगे. सो to create a difference between GF17 and Tejas in the international BPN market. हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. तो एनिमल हस्बेंड्री कहने का मतलब है स्टूडेंट्स एनिमल्स को जो पेट्स होते हैं काउ बुफेलोज और इन सारी चीज़ों को पालना, इनसे प्रोडक्टिविटी को जनरेट करना. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी uses the mixed crop livestock farming system. Cattle, goats, fowl are the widely domesticated species. तो स्टूडेंट्स जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसमें जनरली कैटल्स को, गोट को, फाउल को ये वाइडली डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है. लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम. जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी होती है उससे फार्मर्स की स्टेबल इनकम होती है. साथ साथ फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़. मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो यदि एनिमल हस्बेंड्री को परफॉर्म करते हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम एनहेंस होती है. साथ ही साथ जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी राइज होती है ड्यू टू एनिमल हस्बेंड्री. नाउ लर्न द डिटेल्स ऑफ अ प्लांट टिश्यू. अब हम प्लांट टिश्यू की डिटेल पढ़ने वाले हैं. प्लांट टिश्यू में पता है वो किसके अंदर मिलने वाला है, एंड प्लांट बॉडी के अंदर मिलेगा और यू नो दैट इट इज शीट लाइक स्ट्रक्चर. अब देखो अब ये जो टिश्यू है हमें पता है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स से मिलके बना है. तो कौन सी सेल है उसके बेस पे ही हमने क्या कर दिया, प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में बांट रखा है विच इज व्हाट, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा हमारा कौन सा आ गया, परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक और सेकंड वन इज अ परमानेंट प्लांट टिश्यू. तो हमारे जो प्लांट टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल की सेल कौन सी है उसके बेस पे हमने प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में बांट रखा है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कॉमनली एक और नाम से भी बोला जाता है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ मेरिस्टेम्स. इसको मेरिस्टेम्स ही बोला जाता है. व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर dividing, cells of this tissue are dividing in nature. कि इन टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, डिवाइड होते रहेंगे, वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. while in the case of the permanent tissue cells आगे cells of
these tissue are not dividing कि इन सेल के जो टिश्यू होते हैं, इन टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे आर नॉट डिवाइडिंग। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यही 3 सेट्स के लिए, किसके लिए? फॉर एनी 3 सेट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है जे, क्या कहता है बेटा वो पॉइंट? वो कहता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। यानी अब मैं जो एसोसिएटिविटी जो चेक कर रहा हूं, एसोसिएटिविटी जो मैं चेक कर रहा हूं बेटा, वो किस पे कर रहा हूं? 3 सेट्स के इंटरसेक्शन पे। क्लियर है? यानी कि क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? यानी कि अगर मैं पहले 2 सेट्स का कॉमन पार्ट निकालूं, कौन से सेट्स का बेटा? सेट बी और सेट सी। किसका निकालू बच्चों? सेट बी और सेट सी का अगर मैं पहले कॉमन पार्ट निकालूं और उसके रिजल्ट के साथ अगर मैं सेट ए का कॉमन पार्ट निकालता हूं तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके? ए और बी का कॉमन पार्ट निकालने के बाद सेट सी के साथ जब उनका कॉमन पार्ट निकाला जाएगा। क्लियर है? यानी कि मैं बात करता हूं वही, वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। क्या कह रहा था? आपके पास 2 सेट थे। सेट ए था, क्या था बच्चों? सेट ए था 1, 2, 3। क्लियर है? सेट बी था आपके पास क्या? 3, 4, 5। क्लियर है? एंड द सेट सी इक्वल्स टू 2, 4, 6। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बच्चों। यानी कि अगर मैं सबसे पहले इसमें अप्लाई करता हूं कौन सी कंडीशन? द वेरी फर्स्ट कंडीशन प्रोवाइडेड। क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज, है ना? यानी कि आपके पास आई बेटा क्या है निकल के? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को चेक कर लेते हैं बच्चों। क्या है? सेट बी में और सेट सी में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बेटा? 4। ओके, यानी कि अगर मैं बात करता हूं सेट ए के साथ, तो सेट ए क्या कहता है मुझसे? 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 4। बताइए, यानी कि इन दोनों सेट्स में अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 5। क्या मिलता है बच्चों? 5। क्लियर है? अभी सेम चीज को हम अप्लाई करते हैं किसके साथ? इसको मैं क्या कहता हूं बेटा? LHS कह देता हूं। क्या कह देता हूं? LHS। क्लियर है? बात करते हैं RHS की, तो क्या मिलता है आपके पास? पहले A और B का कॉमन पार्ट निकालिए। क्या निकालिए बच्चों? सेट A और सेट B का कॉमन पार्ट निकालिए, है ना? तो सेट A जो है वो आपके पास क्या है बेटा? 1, 2, 3। इसका कॉमन पार्ट सेट B के साथ, किसके साथ बेटा? सेट B के साथ 3, 4, 5। ओके, इसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट सी के साथ, वो बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्लियर? यानी कि इन दोनों का अगर मैंने कॉमन पार्ट निकाला बच्चों तो क्या मिला मुझे? 3। क्या मिला? 3। इंटरसेक्शन निकालना सी के साथ, जो सी कितना है मेरे पास? सेट 2, 4, 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे बताइए कितना आता है निकल के बच्चों? इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास वापस से क्या निकल के आता है? 5। बात समझ में आती है? यानी इसी को मैं क्या बोल देता हूं? RHS। क्या बोल देता हूं? RHS। क्या आपको LHS और RHS दोनों सेम नजर आ रहे हैं? जी हाँ। क्लियर है? यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। हाँ ना बोलो बच्चों? बात समझ में आती है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज पे। एग्जांपल 2। ओके, वो एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें, चलिए यहां पे फाइनल क्या है, इस बार कुछ न कुछ एलिमेंट्स मिले, तब और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है? आपने क्या किया? सेट ए लिया जो क्या था बेटा? -1, 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8। ओके, आपने सेट बी बनाया। जो सेट बी था बेटा वो था 0 1 2 3 4। ओके, जो सेट सी था वो था बच्चों 0 2 4 6। ओके, अरे बोलो, ठीक है। यानी कि अब मुझे जो निकालना है वो निकालना है बेटा इन पे इसी चीज को मैंने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए पहले बी और सी पे क्या लगा देते हैं बच्चों, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इसी चीज को निकालते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी सबसे पहले मुझे क्या करना है, बी और सी का कॉमन पार्ट निकालना है। किसका निकालना है बच्चों, बी और सी का कॉमन पार्ट निकालना है। बात समझ में आती है? यानी कि जो आपके पास सेट बी है और जो सेट सी है, इनको गौर से देखो और बताइए मुझे कि इन दोनों में से जो आपके पास एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, सेट बी में और सेट सी में जो भी आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनमें से मुझे बताओ कि क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास बी इंटरसेक्शन सी में आपको मिल रहे हैं। चलो देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में बेटा 0 2 एंड 4, 0 2 एंड 4। क्लियर? और तो कुछ नहीं आ रहा, और तो कुछ नहीं आ रहा ना, अरे बोलो, क्लियर है? यानी कि अगर मैं सेट ए के साथ इसके इंटरसेक्शन पे बात करता हूं, किस पे बात करता हूं बेटा, सेट ए के साथ इसके इंटरसेक्शन पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है मुझे बताइए, -1 0 2 4 6 और इसमें क्या आ रहा है 0 2 4। क्लियर है? तो इस सेट में अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं यहां पर, तो सेट ए का, किसका बेटा, सेट ए का सेट बी इंटरसेक्शन सी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है ना। तो यानी कि अगर B is the proper subset of set A, then what is A intersection B? Set B। क्या बेटा, सेट B। बात समझ में आती है? अगर ये भाई साहब पूरे के पूरे इसमें समाये हुए हैं तो इन दोनों का जब मैं कॉमन पार्ट निकालूंगा तो कौन मिलेगा मुझे, छोटी वाली चीज। बात समझ में आती है? चलिए, यानी कि A इंटरसेक्शन, इसको अगर मैं इसको निकालता हूं तो बच्चों क्या मिला मुझे, 0 2 4। क्लियर है? इसको मैंने वापस से क्या बोल दिया बेटा, LHS बोला। क्या बोला, LHS। बोलिए, ठीक है, बढ़ जाए आगे। यानी कि अगर ऐसा मिलता है तो मुझे क्या करना है, वापस मैं RHS पे काम करता हूं। जो मेरे पास क्या थी बेटा, A इंटरसेक्शन B पहले निकालो और बाद में निकाल दो किसके साथ, C के साथ। अरे बोलिए, क्लियर है? यानी कि सबसे पहले मुझे अब इसमें क्या काम करना है, पहले A और B के साथ कांड कर दो, वापस से वही कांड उन दोनों का जो रिजल्ट आता है उसके साथ कर दो। क्लियर है? यानी कि A इंटरसेक्शन B अगर मैं निकालता हूं तो बेटा 0 1 2 3 4, अगेन B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A, और अगर B सेट A का प्रॉपर सबसेट है, सेट B सेट A का अगर प्रॉपर सबसेट है, और अगर मुझे इन दोनों का क्या निकालना है बच्चों, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो जो छोटा वाला सेट होता है वही उनका रिजल्ट होता है इंटरसेक्शन में। किसमें बेटा, इंटरसेक्शन में। और अगर मुझे इसका निकालना हो यूनियन, अगर मुझे निकालना हो इन दोनों का यूनियन प्रॉपर सबसेट के केस में, तो जो बड़ा वाला सेट होता है वही रिजल्ट होता है। बात समझ में आती है? आती है ना। चलिए, यानी कि यहां पर जो मुझे मिला बेटा, क्या मिला वो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। क्लियर है? अरे बोलिए, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बेटा मुझे किसके साथ, सेट सी के साथ। किसके साथ निकालना है, सेट सी के साथ। ओके, चलिए इसमें बात कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 और सेट सी आपके पास 0 2 4 6, यानी इनमें अगर कॉमन पार्ट की बात करता हूं तो बच्चों आपको क्या क्या मिला, 0 मिला, आपको दूसरा क्या मिला बच्चों, 2 मिला, आपको क्या मिला, 4 मिला। अरे बोलिए, क्लियर है?
ये यानी कि आपको इनके कॉमन पार्ट में क्या मिला बच्चों, 0,2,4। आपने इसको क्या कह दिया, बोले सर ये तो RHS है। हम ही बोले बिल्कुल जी। ये यानी कि यहां पर मुझे वापस क्या मिला, LHS तो बराबर है किसके, RHS के, और यही तो आप चाहते थे। क्लियर है? अरे बोलिए, छाप लो, नोट डाउन। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटिक फैक्टर्स। पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स या एनिमल्स का यूज, यानी एनिमल्स या इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, इसे बोलते हैं हम क्या, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स या बायोटिक फैक्टर्स। अभी बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्टली अगर दिखाया जाए यहाँ पर तो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स फॉर ए पॉलिनेटिंग एजेंट। कौन कौन से हो सकते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, बैस्प, एंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास इनके नेम नहीं है, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, कुछ नाम याद कर लीजिए। पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट, इट इज नोन एज द एंटीमोफिली, राइट। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज द ऑर्निथोफिली। ऐसे ही दूसरे तरीके के एनिमल्स या मैं कहूँ कोई बायोटिक फैक्टर्स अगर यूज होते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो उसका टर्म बेटा चेंज होता जाएगा। ये कहाँ से आए टर्म्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, तो वहां से एंटोमोफिली बोल दिया। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोल दिया, तो ऑर्निथोफिली वहां से बर्ड ले लिया हम लोगों ने। तो जिन इंसेक्ट्स या जिस एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं वहीं से रिलेटेड हमने टर्म्स निकाले हुए हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, मोस्टली एनिमल्स में से इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। मतलब सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स इस अर्थ पर अवेलेबल हैं, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी वही काम करते हैं। तो जरूरी नहीं सारे इंसेक्ट्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स अगर नहीं है इस वर्ल्ड में तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा। इट मीन्स आपको खाने के लिए जितने अच्छे तरीके के फ्रूट्स या फसल या जो कुछ भी प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू है, अगर इंसेक्ट्स नहीं हैं तो समझ लीजिए पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि हमें पर्टिकुलर तरीके के क्रॉप्स, फ्रूट्स खाने को नहीं मिलेंगे। पॉलिनेशन के बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दीज आर द सम पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको, राइट। आगे देख लेते हैं थोड़े से और कौन कौन से होंगे। अगला दे रखा है यहाँ पर हमारे सामने है लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, राइट, जो हवा में हैं या जब ऊपर हवा में रहते हैं, रोडेंट्स, ये सब, या रेप्टाइल्स, ये सब भी क्या कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। इनके थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। मोस्टली इंसेक्ट्स करते हैं, बट कुछ एनिमल्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, जितने भी नाम मैंने टिक किए हैं आप लोग इनको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या अगर आपको करना है तो लिख लीजिए अपने हाथ से। आपको याद करने पड़ेंगे सारे नाम एनिमल्स की केसेस में। इंसेक्ट्स के नाम तो हैं ही बहुत सारे हमारे पास। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो इंसेक्ट्स हैं, राइट, जो इंसेक्ट रहेंगे वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन द नेक्टर। क्यों ऐसा करा उन्होंने, वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने के लिए या तो खुशबू होनी चाहिए फ्लावर के अंदर, खुशबू नहीं है तो नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर नहीं है तो कलरफुल कम से कम उसके पेटल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ इन तीनों में से चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लावर्स पर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्लांट्स रात में जिनमें फ्लावर्स आते हैं या रात में जिनके फूल खुलते हैं या खिलते हैं, उन प्लांट्स में मैक्सिमम कलर वाइट ही होता है रात को खिलने वाले फ्लावर्स का। क्यों? और उसमें एक चीज और होती है, बहुत ज्यादा खुशबू होती है। आप जितने भी फ्लावर्स देखते हो जो व्हाइट कलर के हैं, मोस्टली वो रात में खिलते हैं और उनमें बहुत अच्छी, रात की रानी, चंपा, बेला, ये सारे फ्लावर्स में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। वजह, नाइट में कोई कलरफुल होने का मीनिंग तो है नहीं, व्हाइट कलर है, दूर से दिखाई देगा रात में, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर उसके पास आएंगे। अच्छा, अगर वो कलर नहीं देख पाते हैं, किसी की स्मेलिंग पावर ज़्यादा है, तो स्मेल या नेक्टर उसमें से खुशबू बहुत अच्छी है तो उसके लिए अट्रैक्ट होंगे। तो ये दो एडेप्टेशंस हैं। दिन में खिलने वाले फ्लावर्स में एडेप्टेशंस क्या क्या होने चाहिए कि इनमें लार्ज होने चाहिए, फ्लावर्स बड़े बड़े हैं, कलरफुल होने चाहिए, दूर से दिखाई देंगे, खुशबू होनी चाहिए, और अगली चीज़ रिच इन नेक्टर, नेक्टर ज़्यादा होना चाहिए पीने वाला, जिससे वो उसके लालच में उनके पास आएंगे, तभी तो आएंगे, वरना आएंगे क्यों। नेक्स्ट अगर कुछ दे रखा है
अगर फ्लावर छोटे हैं, पहले तो मैंने बोला कि फ्लावर्स बड़े होने चाहिए, लेकिन अगर किसी किसी प्लांट में फ्लावर छोटे हैं मान लो, कोई बात नहीं, तो ऐसे फ्लावर्स बंच में होंगे एक साथ, पूरा क्लस्टर बना लेंगे, तो भी इंसेक्ट्स को दूर से दिखाई देंगे। या तो एक ही फूल बने तो बड़ा सा बने, नहीं बन सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे कलेक्ट हो गए और उन्होंने क्लस्टर बना लिया। ये सब बेटा क्या है, दीज ऑल आर द मॉडिफिकेशंस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। कैसे भी इंसेक्ट्स को अपने पास बुलाने के सारे तरीके हैं ये, है ना। कलरफुल बन जाओ, फूल में बहुत सारा नेक्टर बना लो, ये सारी चीजें। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड ऑफ फ्रेगनेंस। या तो कलर के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स या फिर फ्रेगनेंस के थ्रू, ये दो चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक तीसरी चीज और चाहिए होती है, दैट इज द नेक्टर। वो उसको पीने के लिए आते हैं। यहाँ दिखाया है पॉलन ग्रेन्स के लिए हनी भी आ रही है ये, ठीक है। इसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स चिपकेंगे, किस तरीके से चिपकते हैं आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ सिंपल सा दिखा रखा है, देखो जितने भी फ्लावर्स हैं पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट। इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्मेल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, प्लीजेंट नहीं है, फाउली स्मेल है, बट ये कीड़े इसी से अट्रैक्ट होते हैं, तो कोई बात नहीं, उन्हें तो अट्रैक्ट करना है, वो अट्रैक्ट करेंगे, वो कीड़े उनके पास पहुंचेंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एनिमल विजिट करने के लिए क्या करना है, तो फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल्स। एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिवॉर्ड देना पड़ेगा। वो रिवॉर्ड क्या है, नेक्टर। बेटा बिना नेक्टर, बिना किसी मेहनताने के कोई काम नहीं करता। अगर कीड़े काम करके दे रहे हैं फ्री में, क्या करते हैं, पॉलिनेशन बहुत बड़ा काम है, तो इसके एवरेज में कुछ तो देना पड़ेगा, नेक्टर। मैंने बताया था स्टिग्मा पर प्रेजेंट शुगरी सोल्यूशन होता है, कुछ इस तरह की प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो उनके लिए डाइट है, ठीक है, वो उनकी पूरी डाइट है, वो उसको खा के ही तगड़े बनते हैं, वो उसी से अपनी लाइफ चला रहे हैं। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स, इनके वजह से ही कीड़े आते हैं, ठीक। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथस एंड स्टिग्मा। ये जो फ्लावर रिवार्ड दे रहे हैं, इसी रिवार्ड के चक्कर में सारे एनिमल, सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते रहते हैं, वरना वो नहीं आ पाते, उनके पास आने का ऑप्शन नहीं बनता, ठीक है। अगला देख लीजिए, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, राइट, एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, उसमें दो चीजें स्पेशल होनी चाहिए। पहली, पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होना चाहिए, और दूसरा, जो एनिमल है, जो इंसेक्ट है, उसकी बॉडी बहुत हेयरी होनी चाहिए। उसकी बॉडी एकदम स्मूथ होगी तो वो चिपकेंगी किस पे, तो अगर आप कभी भी देखोगे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास बहुत हेयरी बॉडी होती है, बहुत, अगर आप हैंड लेंस से उनको बढ़िया से जूम करके देखेंगे तो उनकी बॉडी पे आपको बहुत सारे ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिसमें सारे पॉलन ग्रेन्स फंस जाते हैं। और इवन देन इंसेक्ट्स के पास तो उनके आगे जो पोर्शन है वहाँ पर पॉलन बास्केट होती है, वहाँ पे भर जाते हैं सारे सारे पॉलन ग्रेन जब वो बैठते हैं फ्लावर्स में। दीज आर द सम एडेप्टेशंस, राइट। अच्छा, एनिमल्स कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट, बस उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपके एक फूल से दूसरे फूल पे पहुंचेंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। जरूरी नहीं कि खाने की चीजें दी जाएं यही रिवार्ड हो, कहीं कहीं पर शेल्टर भी दिया जाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ इंसेक्ट्स अपने अंडे देने के लिए जाते हैं, वहां पर खाने के लिए नहीं जा रहे, किस लिए जा रहे हैं, अंडे देने के लिए, एग लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक। इससे क्या बेनिफिट है, एनिमल को तो जगह मिल गई, इंसेक्ट को तो जगह मिल गई, एग लेने के लिए सेफ प्लेस मिल गया, और प्लांट्स में क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया। कुछ स्पष्ट तरीके के प्लांट्स में, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम गूलर बोलते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो इंसेक्ट्स नहीं अगर जाएगा अंदर तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, और वो फ्रूट हमेशा सड़े हुए निकलते हैं, कीड़े उसमें होंगे, क्योंकि वो एग लेइंग करते हैं वहाँ पर, तो वो फ्रूट्स हम तो नहीं खा सकते, लेकिन पर्टिकुलरली उस प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसके सीड्स फिर नए प्लांट को जन्म दे देंगे, वो नया प्लांट जहाँ पे भी उगना होगा वो नए सीड से उग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इज द टॉलेस्ट फ्लावर और टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमरफिलस, राइट। कितना, लगभग 6 फीट का फूल है ये। इसमें इंसेक्ट्स अपने अंडे देने के लिए चले जाते हैं। एक कॉमन एग्जांपल और मैं आपको देता हूं ऐसा ही, जहां पर यही सेम सिचुएशंस होती है, ठीक है। क्या है वो, मॉथ ऑफ प्लांट। कौन सा प्लांट है बेटा वो, यूका प्लांट। ये एग्जांपल काफ़ी बार पूछा जाता है,
अभी आप जब पढ़ोगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ पर भी आपको कई तरीके की टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, राइट, म्यूटलिज्म, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो वहाँ पर वापस ये वाला टॉपिक फिर से आ जाएगा, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, म्यूटलिज्म के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, क्यों बनाते हैं, इसका अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक। सो डोंट वरी, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन अ सिंगल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब आपको इतना पता है कि अगर ये रिजर्व है तो ये रिजर्व कहाँ पे जाएगा, आपका लाइबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि जितने भी रिजर्व होते हैं वो लाइबिलिटी साइड जाते हैं। और आपको बच्चों ये भी पता है कि लाइबिलिटी का नेचर जो होता है वो क्रेडिट होता है, और हम जितने भी पास्ट प्रॉफिट गिवन होते हैं उन सभी पास्ट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, अब बनाते क्यों है वो समझना। भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस से बाहर लगाया, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसी अदर बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या तो बढ़े या फिर घटे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर मैनेजमेंट को, कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जा सकती है, तो नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से थोड़ा सा सेट असाइड कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर लॉस, अगर होने वाला हो तो ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि हम फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को कंपनसेट कर सकें। तो इस एग्जांपल के थ्रू जो है बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी है। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 10,000 का गिवन है, और जो इन्वेस्टमेंट गिवन है वो बच्चों आपको 1 लाख रुपए की गिवन है। ठीक है, जब भी चेंज होगा वो इस वैल्यू के अंदर चेंज होगा, और इस वैल्यू में जो चेंज हैं उसके अलग अलग तरीके हैं। तो उसके लिए मैंने 5 केसेस आपके लिए डिफाइन करे हैं। पहला कि मान के चलते हैं, अच्छा एक चीज़ और है इसके अंदर मैंने नीचे लिखी है, सपोज इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर ओनली 2 पार्टनर। ठीक है, द रेशियो ऑफ पार्टनर इज 3:2, दे वांट टू चेंज डिसाइड द रेशियो इज 1:1। वो आपस में कैसा चाहते हैं, जो है 1:1 चाहते हैं। हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं, हम ओल्ड रेशियो को 1:1 ले लेते हैं, और जबकि फ्यूचर रेशियो को हम 3:2 ले लेते हैं। इस चीज़ से क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, आपको समझने के लिए भी आसानी होगी और मुझे समझाने के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, पहली सिचुएशन कहता है कि इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नो चेंज, मतलब जितने की इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख, वो 1 लाख ही है, ना ही बढ़ी है और ना ही घटी है। अब इसका मतलब हमने जो अपना करंट ईयर में से रिजर्व बचा के रखा था, भाई मेरे हाथ में कितने रुपए का रिजर्व था, 10,000 रुपये का रिजर्व था। अब ये 10,000 ना बढ़ा ना घटा, तो ये जो पास्ट प्रॉफिट है, रेशियो के चेंज होने से पहले जो भी मेरा रेशियो प्रॉफिट बचता है या लॉस होता है, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री कैसे बनती है यहाँ देखना। लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है, और क्रेडिट को जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका नेचर रिवर्स होकर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट द 10,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब इस 10,000 को हम इसके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जो कि कितना नजर आएगा, 5,000 5,000। ये बच्चों मेरी केस नंबर 1 की एंट्री हो गई है। सो प्लीज़ यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। आप प्रॉपर तरीके से केस 1 2 3 4 5 अलग अलग केसेस को आराम से समझना, ताकि आपको चीज़ों को आराम से समझ में आ सके। ठीक है, केस नंबर 2 कहता है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 95। पहले हमारी वैल्यू कितनी गिवन थी, 1 लाख रुपए की, और अब घट कर कितनी हो गई, 95,000। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास 10,000 का जो प्रॉफिट था, उस 10,000 के प्रॉफिट में से 5,000 का तो मुझे नुकसान हो गया।
तो अब मेरे पास रिजर्व कितना बचा भाई, 10 में से 5 जाएंगे तो रिजर्व कितना बचा, 5। तो उसके लिए एंट्री कैसे बनेगी बच्चों वो देखना।